Namaskar. First of all, we should thank to our school, Sri Amarnath Vidya Ashram, and especially to our principal sir, Dr. Arun Kumar Bajpayee, to offer such a nice facility of online classes in this horrendous time, so that we can be in contact through online classes every day. Okay. Now we start the next lecture on banking. Before starting this lecture, I want to repeat some topics of money supply which we previously read. In money supply, I told you that there are two sectors. One is known as money using sector and the other is known as money supplying sector. In money using sectors, the two categories were involved and they combinedly known as public. And public includes all individuals and business firms. They are money using sectors. Whereas money supplying sector includes three categories. First, government, that is Ministry of Finance, who is responsible for issuing all the coins and 1 rupee note in circulation. Second is RBI, that is Reserve Bank of India, who is responsible for issuing all the notes except 1 rupee note. And third one is commercial bank, which I told you at that time that I will explain to you in later lectures. So it's the time I will come on. तो मनी यूजिंग सेक्टर्स में तीन कैटेगरी होती हैं. एक गवर्नमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो जिम्मेदार होती है 1 रुपी नोट्स और कॉइन को इशू करने की. दूसरी होती है आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी होती है सभी प्रकार के नोट्स को इशू करने की एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. और तीसरा मैंने आपको उस समय बताया था कि तीसरी जो एजेंसी होती है वो होती है कमर्शियल बैंक. वो भी मनी क्रिएटिंग करती है और मनी क्रिएट करती है. लेकिन मैंने वहां आपको बताया था कि इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो अब वो वक्त आ गया है कि मनी, कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं. तो कमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करते हैं, इसको समझने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में या जिनका मतलब हम नहीं समझेंगे तो कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी क्रिएट करती हैं, कितना मनी क्रिएट करती हैं, इसको हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ सेंट्रल बैंक, हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी एंड हाउ मच मनी दे कैन क्रिएट. सो लेट अस नाउ वी स्टार्ट telling you about some important terms. And what first of all is, let us come to the board. Some important terms, the meaning of which we should know before proceeding further. That is, before discussing how commercial bank creates credit. And these terms are, some of these terms are, first is primary deposit, second is secondary deposit. And what is the main difference between the two type of deposit and how combinedly they are known as? Primary deposit. This primary deposit is also known as initial deposit. अब ये प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट होता क्या? जब कभी हम बैंक में अपना अकाउंट खुलाने जाते हैं और उसमें कैश जमा करते हैं फर्स्ट टाइम, उसे कहा जाता है प्राइमरी डिपॉजिट और इनिशियल, जिसको मैंने डिफाइन किया है
कि प्राइमरी डिपॉजिट्स आर न्यू और इनिशियल डिपॉजिट इन कैश बाय द पीपल with the commercial bank, and this reflects indirectly the savings of the people in commercial bank. तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक्चुअली ये क्या इंडिकेट करते हैं? सेविंग्स ऑफ द पीपल। जब कोई इंडिविजुअल बैंक में अकाउंट खुलाता है और उसमें फर्स्ट टाइम कैश जमा करता है, वो जो कैश डिपॉजिट होता है दैट इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है पीपुल्स की सेविंग्स इन कमर्शियल बैंक। और ये कमर्शियल बैंक्स की जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं उनका पार्ट होता है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती हैं? डिमांड डिपॉजिट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं। दीज आर दोज डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉन बाय द कस्टमर ऑफ ए कमर्शियल बैंक anytime with the help of checks, ATMs, debit cards, etc., etc. Second comes secondary deposit or demand deposit or derivative deposit. Secondary deposit or demand deposit or derivative deposit. ये क्या होती है? These are deposit which arises on account of loan given by the commercial banks. ये डिपॉजिट कब क्रिएट होती है? जब कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन देती है। और ये डिपॉजिट्स क्या इंडिकेट करती है? जैसे प्राइमरी डिपॉजिट इंडिकेट करती है सेविंग ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक, सिमिलरली जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो इंडिकेट करती हैं द बोरिंग्स ऑफ द पीपुल फ्रॉम कमर्शियल बैंक। एक बात मैं आपको समझा देता हूं, अभी आपको समझ में नहीं आएगी। बैंक जब किसी को लोन देती है तो बैंक किसी को कैश नहीं देती है। बैंक क्या करती है? उसका एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोल देती है और उसमें वो पैसे ट्रांसफर कर देती है, जिसको कि कस्टमर जिसने लोन लिया है चेक के द्वारा कभी भी विड्रॉ कर सकता है। बैंक कभी भी लोन के रूप में कैश नहीं देती है। वो उसका एक अकाउंट खोलती है और उसमें पैसे जमा कर देती है। कैश बोरोवर के हाथ में नहीं देती है, लेकिन बोरोवर को चेक दे देती है और उस चेक के द्वारा वो अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकता है। ये जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स होती हैं, जिनको हम डिमांड डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं, ये भी क्या होती है? दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। अर्थात कमर्शियल बैंक्स की जो टोटल डिमांड डिपॉजिट होती हैं वो क्या होती हैं? प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। अब आशा करता हूं कि आपको प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट समझ में आ गया होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज कैश रिजर्व रेशियो, which is also known as CRR. What is CRR? CRR refers to the minimum amount of cash which commercial banks to keep with RBI as reserve as a percentage of their total deposit. That is, ये क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स के पास जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को कैश के रूप में आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है एज सिक्योरिटी। अब ये परसेंटेज कितना होता है? ये परसेंटेज कौन डिटरमाइन करता है? दिस परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व इज डिक्लेयर्ड और डिटरमाइंड बाय आरबीआई। ये परसेंटेज डिटरमाइन करती है आरबीआई एंड इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। और ये चेंज भी हो सकता है। जैसे मान लो किसी क्वार्टर में सीआरआर 5% है, आरबीआई को लगता है कि इसे कम करना चाहिए तो घटा के उसे 5% से 4% पे कर सकती है। आरबीआई को लगता है कि उसे कम कर देना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए
तो वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, जो कि हर 3 महीने पे घोषित होती है, इसे चेंज कर सकती है इकोनॉमी के हालात के अनुसार। प्रेजेंटली इन दिस कोविड टाइम, प्रेजेंटली द CRR इज 3% ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट। तो CRR क्या होता है बेटा? कमर्शियल कैन के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है, उस टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 3% ऑफ टोटल डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश एज ए सिक्योरिटी। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा। और ये परसेंटेज कौन डिटरमाइन करता है? ये परसेंटेज डिटरमाइन करती है RBI। और ये जो परसेंटेज होता है, दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। जब RBI को लगता है इसे चेंज करना है, तो वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इसे चेंज कर सकती है। जैसे प्रेजेंट में ये CRR है बेटा 3% ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। चौथा आता है बेटा स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जिसे हम SLR भी कहते हैं। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू लिक्विड एसेट that the commercial bank must hold with themselves on daily basis as a percentage of their total deposit, and this percentage is also determined by the RBI and it is also subject to change. इसको जानने के पहले बेटा लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं वो जानें। लिक्विड एसेट 3 चीजों को मिला के बनते हैं, एक कैश, एक गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, और तीसरा है बेटा अनएनकम्पर्ड एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अनएनकम्पर्ड का मतलब होता है जिसपे और किसी प्रकार का भी अधिकार ना हो, कहीं गिरवी ना रखा हो, और वो किस रूप में होना चाहिए? अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। तो यदि हम इन तीनों को मिला लेते हैं, इन तीनों का जो समेशन होगा, दैट विल बी नोन एज लिक्विड एसेट। अब आपको मैं ये समझाता हूं। ये रेशियो क्या होता है? यहां पे कमर्शियल बैंक को लिक्विड एसेट्स के रूप में खुद अपने पास रखना पड़ता है टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज। और वो सर्टेन परसेंटेज कौन डिटरमाइन करता है? RBI करती है। और यहां भी ये परसेंट जो है सब्जेक्ट टू चेंज है। और लिक्विड एसेट्स मैंने आपको बता दिया। तो इट रेफर्स टू, मैं बोल सकता हूं इट रेफर्स टू कैश, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, अनएनकम्पर्ड एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ अनएनकम्पर्ड एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज which the commercial bank must keep as a percentage of their total deposit with themselves। और वो अपने पास क्यों रखेंगी? To meet the demand of their customers, ताकि उनका कस्टमर्स जब उनसे पैसे लेने आए, कभी डिमांड करे, तो वो उनको फौरन उनकी डिमांड को फुलफिल करे। ये जो परसेंटेज होता है SLR का, ये भी RBI डिटरमाइन करती है, और ये भी सब्जेक्ट टू चेंज होता है। RBI को लगता है इस परसेंट को बढ़ाना है या घटाना है, तो अपने मॉनेटरी पॉलिसी में वो इसमें चेंजेस ला सकती है। अब नेक्स्ट आता है बेटा लीगल रिजर्व रेशियो। ये कुछ नहीं होता है, ये इन दोनों का समेशन होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, परसेंटेज LRR इक्वल टू क्या होता है? परसेंटेज CRR प्लस परसेंटेज SLR। मान लो CRR 5% है और SLR 20% है, तो LRR कितना हो जाएगा? 5 + 20 25%। और LRR को बहुत से राइटर्स कैश रिजर्व रेशियो के नाम से भी जानते हैं, और उसे रिजर्व रेशियो के नाम से भी पुकारते हैं। तो LRR क्या होता है? इट रेफर्स टू मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व which the commercial bank have to keep either with themselves or with RBI as a percentage of their total deposit। तो ये वो कैश रिजर्व होता है जो
कमर्शियल बैंक्स को आइदर अपने पास या आरबीआई के पास रखना होता है और एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा